Hope you all are well. We'll continue with chapter 3, that is powers, assignment 3.2. And today we will discuss the laws of exponent. Why we are discussing these laws of exponents? Actually, these laws of exponents are very useful for the simplification of the expressions of rational number. जो rational number से expressions हमें दी जाती हैं उनका solution हम easily by the application of laws of exponents हम easily solve कर सकते हैं. Okay, so let's start. If x is a non-zero rational number, अब यहाँ पर first law में आप देख रहे हो मैंने x का use किया है. So यहाँ पर if x is a non-zero rational number and m and r are positive integers, okay, then what is the law? The law is if bases are same, can you see the bases are x and x, if bases are same and powers are different and the bases are in product, multiplication में है, if bases are same and they are in multiplication, then their power gets added. Base single हो जाता है और उनकी power क्या है, add हो जाती हैं. Let's take an example. 1/2 raised to the power 3 into 1/2 raised to the power 4. अब आप देख रहे हैं बेसिस सेम है 1/2 1/2 एंड जो आपकी पावर्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है 3 and 4 एंड दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड. सो इन दोनों की वैल्यू क्या बनेगी, बेस हम सिंगल कर देंगे. ओके, एंड क्या होगा, पावर्स क्या हो जाएंगी, एड. सो इट विल बी 3 + 4. तो जो इसका सोल्यूशन आएगा 1/2 पावर 3 + 4 is 7. ओके, सो नाउ अब हमने क्या करना है, 1/2 को 7 बार मल्टीप्लाई कर देना है. वी विल गेट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर expression. Okay, so hope you have understood what is the law, first law of exponent. The law is if the bases are same and they are in multiplication, then their power gets added. Okay, so now let's move to the next one. The next law is if bases are same and they are in division. Okay, if bases are same and they are in division, then their power gets subtracted. Then their power gets subtracted. Now you can see, now there are some cases. अब x and x है और उसकी powers क्या है, different है and they are in division. तो हमने क्या बताया ना, जो x होगा बेस होगा वो सेम हो जाएगा और जो पावर जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी. बट सी अब जो आपका m और n है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल 3/2. ओके, 3/2 की पावर कितनी है, सपोज 5 ले लेते हैं. ओके, एंड डिवाइडेड बाय 3/2 पावर 2. अब इन दिस केस m is greater than n. Can you see 5 is greater than 2? Here m is greater than n. That means 5 is greater than 2. तो क्या होगा बेटा, तो आपका एक ही रेशनल नंबर रहेगा और उसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस m minus n. So it will be 3/2 raised to the power 3. 5 minus 2 is 3. This was the case when the power of the first base is greater than the power of the second base. तब तो आपका ये वाला केस फॉलो होगा जिसमें m minus n कर देंगे. ओके, बट when suppose if the powers are same, if powers are same, यहां पर क्या है, इसकी पावर भी 5 है और इसकी पावर भी 5 है, तब क्या करेंगे, तब भी सेम करना है. इफ m is equals to n, that means 5 equals to 5. In this case what you have to do is 3/2 5 minus 5. Okay, and that is 3/2 raised to the power 0. और जब किसी भी बेस की पावर 0 होती है, नॉन जीरो रेशनल नंबर की पावर 0 होगी, so that is equals to 1. This is the another law of exponent which we will discuss later. Okay, if powers are same in case of the bases in division, then the power gets subtracted and it result in 0. और जब किसी भी रेशनल नंबर का पावर 0 है, that is equals to 1. ओके, दिस वाज द केस जब m जो था वो ग्रेटर था n से. अब इसमें m इज इक्वल टू n है, बट नाउ अनदर केस कैन बी हैपन. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब आप
आपका जो यहाँ पर आपका n ग्रेटर है, m जो है वो 5 ही है और n आपका क्या हो गया 8 हो गया. इन दिस केस व्हाट विल वी डू? Here m is less than n, so 5 is less than 8. Now what will we do? What we have to do is, अब यहाँ पर माइनस तो होगा बट इसका रेसिप्रोकल होगा, तो हमारा क्या होगा 1/3/2. अब पावर माइनस होंगी, सो दैट इज 8/-5, सो इट विल बी 1/3/2 पावर 3. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड. सो वो क्या है, जो बेस है वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है. एंड पावर जो है जो n में से m माइनस होगा. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड. हमने क्या किया है बेटा, इफ बेसेस आर सेम एंड दे आर इन डिवीजन, और जो पहले बेस की पावर है वो दूसरे बेस की पावर से छोटी है, हमने m माइनस n करना होता है ना. बट इन दिस केस जहां पर m जो है वो n से छोटा होता है, उस केस में आप क्या करते हैं 1 दैट पर्टिकुलर बेस, और उसका करते हैं हम n माइनस m. हमने किया ना 8 - 5. ओके, सो आवर आंसर इज 1/3/2 raised to the power 3. Okay, hope this is clear to you. So now the third law of exponent. Now when a number is there, non-zero rational number is there. Non-zero rational number कुछ भी हो सकता है बेटा. 5 is also a rational number. Okay, इसके नीचे हम अगर मान लगा दे, that becomes in a form of rational number. So if a non-zero rational number is there, suppose I am writing 5 है, उसकी पावर क्या है 2 है, ठीक है, पावर 2 है, और उसकी होल पावर क्या है 3 है. तो आप क्या करेंगे बेटा, इफ बेस इज देयर, उसकी एक पावर दे रखी है और उसकी एक होल पावर भी दे रखी है. x की पावर क्या दी हुई है m, और उसकी होल पावर क्या दी है n. इन दैट केस बेस सेम रहता है 5 और पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं 2 × 3, तो दैट इज इक्वल्स टू 6. ओके, 5 raised to the power 6. फोर्थ लॉ इज x कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर है और उसकी पावर 0 है, दैट इज इक्वल्स टू 1. सपोज 5/8 एक रेशनल नंबर है और उसकी पावर क्या है 0 है, दैट विल इक्वल्स टू 1. चाहे कोई भी रेशनल नंबर हो बेटा, या कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है दैट विल इक्वल्स टू 1. नाउ द नेक्स्ट रूल इज, कोई भी रेशनल नंबर है और उसकी पावर 1 है, 5/8 ले लेते हैं, 5/8 की पावर क्या है 1. ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू द रेशनल नंबर इटसेल्फ. कोई भी रेशनल नंबर है, एनी रेशनल नंबर हैविंग अ पावर 1, that will equals to the rational number itself. That should be a non-zero rational number. Now, sixth law is, if bases are different, you can see bases are different and they are in product, but their powers are same. Can you see bases different हैं और power क्या है same है, and they are in product. 5/8 की पावर है 3 into 1/2 की पावर है 3. तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 5/8 into 1/2. इन दोनों बेसिस का प्रोडक्ट कर देंगे और पावर हम इनकी सिंगल रख सकते हैं. ओके, इज दैट क्लियर? इफ बेसिस आर डिफरेंट एंड दे आर इन प्रोडक्ट having same power, then we have to do the product of bases and the power will be single. जो same power थी वो single power हो जाएगी उसकी. ठीक है, hope you have understood. Now if the bases are different with same power and they are in division, if bases are different but with same power and if they are in division, then what will we do? हम bases को divide कर देंगे. Okay, and the power will be the same. वो जो एक पावर होगी दोनों की कॉमन पावर हो जाएगी, that will be n. Okay, hope you have understood. Now we will take questions one by one. Okay बेटा, let's take questions. Question number 2, express the following in single exponential form. ये डबल एक्सप्रेशन में है, इसको एक सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है हमने. So what we have to do is, can you see bases are same
and they are in division with different powers. So हमारे पास एक रूल है x raised to the power m divided by x raised to the power n, that is equals to x raised to the power m minus n. So we are using this rule. So it will be x जो है हमारा, that is the rational number, that is m minus n. Now I have told you कि बेटा जब m जो है वो लेस होता है n से, तो हम क्या रूल लगाते हैं, रूल लगाते हैं x रेसिप्रोकल में आता है n माइनस m. आप इस वे से भी कर सकते हो, इसको 1/8/5 n माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है. सो दैट विल बी 1/8/5 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 6. अब इसको रेशनल नंबर में कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट विल बी 5/8 रेज टू द पावर 6. ओके, बट यू कैन डू इट दिस वे ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो डू इट दिस वे. सी m माइनस n वाला रूल लगा देते हैं, 8/5 दैट इज m माइनस n, 2 माइनस 8. 2 माइनस 8 अगर हम करेंगे सो दैट विल बी 8/5. टू इंटीजर्स विद डिफरेंट साइन, एक प्लस का है एक माइनस का है, और तो क्या होंगे, सबट्रैक्ट होंगे, और साइन किसका आएगा, ग्रेटर वाले का. सो ग्रेटर वाले का साइन क्या है, नेगेटिव. सो बेटा किसी भी रेशनल नंबर की, किसी भी इंटीजर की अगर पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं. सो इट विल बी 5/8 होल रेज टू द पावर 6. यू कैन डू दिस वे ऑल्सो. जब आप m माइनस n करेंगे और m छोटा है तो आपकी पावर नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए आपने उस रेशनल नंबर का क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है. ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं एक हमारे पास बेस है, उसकी 2 पावर्स हैं, उसकी एक पावर है, उसकी होल पावर भी आपको दी हुई है. सो हमारे पास एक रूल था x पावर m होल पावर n, so that is equals to x m into n. Okay, so 2/3 पावर 2 into 5, जो दोनों पावर्स है उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, m into n, so it will be 2/3, 2 5 10. सो पावर क्या हो जाएगी 10. अभी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर निकालना है, सो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे. होप दिस इज क्लियर टू यू. वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now see the next question, evaluate the following. Now you can see in this question 2 bases are in multiplications with power, but both the bases are different. So it reminds us a rule, x raised to the power n into y raised to the power n. y और x दोनों bases different हैं और उनकी पावर क्या है बेटा, सेम है, and they are in product. तो हमारा लॉ क्या बोलता है हमें, हम उन दोनों बेसिस का प्रोडक्ट कर सकते हैं और उनकी पावर क्या हो जाएगी, कॉमन पावर हो जाएगी. ठीक है, सो वी आर डूइंग बेसिस का हम कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन और पावर क्या हो जाएगी, कॉमन, दैट इज 10. अब आपने देखना है सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर आ गया, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है. इफ 2 रेशनल नंबर्स आर देयर एंड दे आर इन प्रोडक्ट, विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट. यू कैन सी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, हियर आल्सो इट इज गेटिंग सिंप्लीफाइड. सो इट इज 1/1 raised to the power 10. So we can write it as 1 raised to the power 10 is the solution of this particular sum. Okay, now next is 2 bases with same power in division. तो इसका हमारे पास लॉ क्या है, so you have to write the laws in bracket while solving the question. Okay, now we are solving this question, so we have to write the law over here, x raised to the power n divided by y raised to the power n. जब ये डिवाइड में है डिफरेंट बेसिस विद सेम पावर, तो उनका सोल्यूशन क्या होता है बेटा, हम डिवाइड कर देते हैं दोनों को, बेसिस को, एंड विद अ कॉमन पावर. So now we have 2/7 divided by 5/7. कॉमन पावर दे दी हमने, असाइन कर दी, दैट इज 5. अब आपको पता है 2 रेशनल नंबर्स इन डिवीजन, हाउ वी विल सॉल्व इट. जो फर्स्ट रेशनल नंबर होता है दैट रिमेन्स सेम, और ये जो डिवीजन का साइन है दैट टर्न्स इनटू मल्टीप्लीकेशन बाय विद द रेसिप्रोकल ऑफ द नेक्स्ट रेशनल नंबर. तो रेसिप्रोकल करेंगे 7/5. नाउ होल पावर हमारे पास क्या है, इसकी 5 ही है, सो इट विल बी 7 से 7 कट कर देंगे, सो दैट इज 7 से 7 कैंसिल हो गया, एंड दैट इज 2/5 एंड रेज टू द पावर
5. Now we have to evaluate it. इवेल्युएट करने के लिए बेटा वी हैव टू सिंप्लीफाई इट. अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं करना था, हमने इनको सिंप्लीफाई करना था, तो इसका 1 रेज़ टू द पावर 10 मींस 1 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 1 ही आंसर आएगा. अब यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स. सो 2 into 2 into 2 into 2 over 5 into 5 into 5 into 5 into 5. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32. So that is we have to write it over here, 32 over 5 5 is 25, 25 5 is 120, 125 और 125 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, so that is 3125. So our solution is 32 over 3125. Hope this are clear to you. Now we are moving to the next question. Dear students, question number 6 is express in exponential form. ये already आपको दे रखे हैं, क्या है ये, bases हैं with powers, different bases हैं, आपने इनको exponential form में लिखना है. Now they are in expanded form. कैसे expanded form में है, क्योंकि एक ही बेस के दो या तीन हमें सेम बेसिस दे रखे हैं. So we have to express in exponential form. So what we have to do is, जो एक जैसे बेसिस हैं उनको हम साथ में रख लेंगे. a square a raised to the power 2, और कोई a नजर आ रहा है हमें, yes this is the a, और कोई a नहीं है तो we will keep it together. Now b cube, b के साथ कौन सी वैल्यू है, b के साथ you can see cube is here, so we will put them together. Now d के साथ हमारे पास 5 है, d raised to the power 5, और d के साथ हमारी वैल्यू कौन सी है, this single d, so into d, but c के साथ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, so we will keep it like this only. Now what we have to do is, you can see bases are same and their power, if bases are same and they are in multiplication, then their power gets added. So power add करने के लिए see a है, a की पावर क्या है 2, और यहाँ पर अगर इसकी कोई पावर नहीं है that is equals to 1. अगर कोई भी पावर नहीं है किसी रेशनल नंबर की तो उसकी पावर क्या है 1. So a raised to the power 2 plus 3 into b raised to the power, bases are same, then their power gets added, into d 5 plus 1 into c square. So it will be a raised to the power 3, 2 plus 1 is 3, into b raised to the power 3 plus 3 6, into d raised to the power 6, into c raised to the power 2. So we will write it as alphabetical order में लिख देते हैं, a raised to the power 3, b raised to the power 6, c raised to the power 2, and d raised to the power 6 again. Okay, this is the way how we express in exponential form. All right, now the next set of question is find the value of x. Now you can see two bases, they are same and they are in product with different powers. So if this is an equation solve करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पहले solve करना पड़ेगा. So let's solve it. Bases are same, they are in product and with the different powers, so it will be same base and their power gets added. So 5 plus 8, that will be equals to minus 2 raised to the power x. So minus 1 by 2 raised to the power 13 is equals to minus 2 raised to the power x. Now you can see बेटा, अब x जो है वो हमारा जो है x अगर bases same हो जाए, so then it will be, if bases are same then the powers are also same, but in this case bases are not same. यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -1/2 है, but you can see अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें बेटा, न्यूमिनेटर में ले जाएं 2 को और डिनोमिनेटर में 1 को ले जाएं, रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे बेसिस सेम हो जाएंगे. तो रेसिप्रोकल जब भी हम किसी का करते हैं रेशनल नंबर का, तो उसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है. सो इट विल बी -2 raised to the power -13, that will be equals to -2 raised to the power x. Therefore x is equals to, अब bases are same then powers are also same, so x is equals to -13. You have to write it over here, if bases are same then powers are also same. Okay, next question is simplify the following. Now you can see various bases are here,
वेरियस बेसिस आर हेयर विद द पावर 0. पावर क्या है इसमें? 0 है. एंड यू नो दैट अगर किसी भी रेशनल नंबर की, नॉन जीरो रेशनल नंबर की अगर आप पावर 0 होती है, देन वी हैव अ लॉ दैट इज इक्वल्स टू 1. नाउ 4 raised to the power 0 is 1, minus 3 raised to the power 0 is 1, plus 2 raised to the power 0 is 1, over 2 by 9 raised to the power 0 is 1. कोई भी नंबर हो, वेदर इट इज अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर और आपका कोई रेशनल नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है, दैट विल इक्वल्स टू 1. नाउ वी विल सॉल्व इट. 1 minus 1 is 0 and plus 1 over 1, so that is equals to 1 by 1 and that is equals to 1. So this is our answer. Okay, now in this question again the law will be the same. x raised to the power 0, किसी भी नंबर की इंटीजर की रेशनल नंबर की अगर पावर 0 है, दैट विल इक्वल्स टू 1. सो 1 की पावर क्या दी हुई है हमें? 0 दे रखी है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1, प्लस 3 raised to the power 0 is 1, ब्रैकेट क्लोज, इनटू 8 raised to the power 0 is 1, माइनस, सो 5 raised to the power 0, दैट इज 1. सो इसमें क्या करना है बेटा? साइन जैसे हैं वैसे ही रहने देंगे, जस्ट वी आर पुटिंग द वैल्यू, वी आर यूजिंग दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. ओके, सो 1 plus 1 is 2, ब्रैकेट वाइज सॉल्व करेंगे, इनटू 1 minus 1, that is 0. So 2 into 0 is 0. This is our answer. Okay, the next question is, if a upon b is this, जो a upon b है उसकी वैल्यू कब आएगी? जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन b होल स्क्वायर, मतलब उसकी पावर 2. हमने पहले a अपॉन b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, फिर उसकी वैल्यू, उसको इवेल्युएट करने के बाद उसका स्क्वायर कर देना है, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a बाय b रेज्ड टू द पावर 2. सो लेट्स इवेल्युएट a b फर्स्ट. सो a अपॉन b इज इक्वल्स टू 3 by 5 raised to the power 18 divided by 3 by 5 raised to the power 16. Now you can see the bases are same and they are in division. If bases are same and they are in division, then their power gets subtracted. Now what rule we are applying? X raised to the power m divided by x raised to the power n. So that is equals to x raised to the power m minus n, where m is greater than n. You can see 18 is greater than 16. So we are putting the value a upon b is equals to 3 by 5. पावर बेस क्या हो जाएगा? सिंगल बेस हो जाएगा और पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट. So that is equals to 3 by 5 raised to the power 18 minus 2 is 2. So what will be the value? Now ab की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं. So that is equals to 3 by 5 raised to the power 2. That is equals to 3 2 and 5 2. 3 into 3 over 5 into 5, that is equals to 3 3s are 9 and 5 5s are 25. Now this is the value of AB. किसकी वैल्यू आई है बेटा? ये वैल्यू आई है AB की. Okay, now what we have to find out? We have to find out the value of a by b whole square. So therefore a upon b whole square is equals to 9 by 25 power 2. So that will be equals to 9 power 2, 25 power 2. So that is equals to 9 into 9 over 25 into 25. Now we have to multiply. 9 9s are 81 over 25 into 25 is 625. So this is basically the solution of this particular expression. Now what the question was, हमें AB की एक एक्सप्रेशन दी हुई थी बेटा, हमने उसको इवेल्युएट किया. जब हमने उसको इवेल्युएट किया तो हमारा आंसर आया 9 by 25 और हमने फाइंड आउट करना था लास्ट में a by b raised to the power 2. तो वही वैल्यू फाइंड आउट करी, जो हमारी AB की वैल्यू आई थी उसकी पावर हमने 2 कर दी. तो उसको इवेल्युएट किया, न्यूमरेटर को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया. विल गेट द वैल्यू एज 81 divided by 625. Last question is, ये आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है बेटा, यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन. इवेल्युएट करना है हमने, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? नाउ अब आप देख सकते हो 2 रेशनल नंबर्स जो हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं, उनकी पावर्स हैं,
बट यहाँ पर जो रेशनल नंबर दिए हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उनकी कोई भी पावर नहीं है. सो वी विल कन्वर्ट दीज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एंड हमें रेफरेंस कहां से मिलता है बेटा? देखो 3/4 है न्यूमरेटर में, तो डेफिनेटली अगर हम ट्राई करें तो हम इस वाले रेशनल नंबर को 3/4 में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड 5/3 है, 25 के फैक्टर अगर हम बनाएंगे तो 5 × 5 × 5 बनेगा. तो ये भी हमारा इस रेशनल नंबर में क्या हो सकता है? कन्वर्ट हो सकता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. -3/4, यहाँ आप देख रहे हैं पॉजिटिव नंबर है. सो हम क्या करेंगे? माइनस को पहले ही कॉमन ले सकते हैं, माइनस की पावर हम कर देते हैं, -1 की पावर कर देते हैं 4. सो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा? 3/4 रेज टू द पावर 4. हमने माइनस साइन बाहर कर दिया बेटा, सो दैट कि हम अभी आपको पता चलेगा कि हमने क्यों किया -1 बाहर. इंटू 125/27. सो 125/27 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम करते हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू 5 × 5 × 5. And this denominator will be equals to 3 × 3 × 3. So can we write it as 5/3 whole raised to the power 3. Okay. So I'm writing 125/27 like 5/3 raised to the power 3 upon 5/3. Already था denominator में, raised to the power 2 into 9/16. So 9/16 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, सो दैट विल बी 3 × 3. अब ऊपर न्यूमरेटर में 2 है मल्टीपल्स, सो हम यहाँ पर भी 2 लिखेंगे. 4 × 4 दैट विल बी 16. 4 4 is 16, so it will be 3/4 raised to the power 2. So यहाँ पर देखो बेसिस हमारे सेम हो गए हैं, 3/4 raised to the power 2. Now अब आपको पता चला हमने -1 बाहर कॉमन क्यों लिया? So that we can सेम कर सके हम किसको? बेसिस को. ओके, नाउ यू कैन सी बेसिस आर सेम एंड दे आर इन डिवीजन. 3/4 raised to the power 4 divided by 3/4 raised to the power 2. So we can write it as 3/-1 को साथ में लिखेंगे into 3/4 power 4 - 2 into, now you can see bases are same and they are in division. 5 into 5/3 raised to the power 3 divided by 5/3 raised to the power 2. So it will be 5/3 raised to the power. They are in division, so their powers will get subtracted. So 3 minus 2. Now we will solve this. -1 raised to the power 4. आपको पता है जब माइनस साइन की पावर जो है वो इवन होती है, so that will be positive. Okay, so we are not supposed to write it. So 3/4 in raised to the power 2 into 5/3 raised to the power 1. अब आपको पता है अगर पावर 1 है तो वो क्या होगा? सिंपल रेशनल नंबर होगा. So we are writing it in expanded form. 3/4 into 3/4 into 5/3 raised to the power 1 था, that means that will be equals to the rational number, so it will be 5/3. So now we have to simplify. 3 से 3 हम cancel कर सकते हैं, so it will be 3 5s are 15 over 4 4s are 16. So this is the solution of this particular expression. Now I will send you the solution of this particular assignment. You have to copy down those solutions and you have to try to solve each and every part of every question by yourself also. Okay, good luck.